Hello everyone and welcome to English Wala. My name is Yogesh Mishra and today I am here to bring you some new concepts or some traditional concepts of grammar, a beginner's guide to the English grammar. Okay, so in today's video we will try to cover up the grammar from the basics, and that's why I took the part of speeches. Okay, so parts of speech is the basic topic from where the grammar starts. Okay, so we will try to cover this thing by the help of questions, by the help of statements, and मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी सेंटेंस में आप क्या करते हैं, वर्ड्स को पहचानते हैं और कैसे उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं. ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. इट इज गोइंग टू change the way you are learning English grammar. Okay, so the first question that appears is the changes in policies have already been implemented. Okay, so आज से पहले जब आप पढ़ते होंगे तो शायद इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते होंगे, बट आज से आप देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड हाईलाइट कर रखा है, हार्डली. ठीक, अगर आपको पता है तो आप मन ही मन में ये बता सकते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू पॉलिसीज क्या है. यहाँ पे नाउन है. ठीक है, हैव जो है वो मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. बीन जो है वो भी मेरा एक ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेड जो है वो एक मेरा क्या है, मेन वर्ब है, जिसे मैं कहता हूं एक्शन वर्ब. ठीक है, सो ये हैव बीन इम्प्लीमेंटेड को कौन इसके बारे में बता रहा है, कौन, हार्डली. ठीक है, और आपको पता है कि दुनिया जानती है कि जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब को क्या कहते हैं, कोई भी कार्य होने का जो बोध करा है उसे वर्ब कहते हैं. ओके, सो एनी फॉर्म ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. सो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं बोलता हूं एडवर्ब. सो बेसिकली हैव बीन इम्प्लीमेंटेड वर्ब ही तो है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, उसको मॉडिफाई हार्डली कर रहा है. सो हार्डली इज एन एडवर्ब राइट हियर. ओके, सो नाउ क्विकली जस्ट कम and try to learn how many parts of speeches are there. But before that, what is English, my friend? English is just the usage of words. ठीक, you have to know the meaning of word and you have to do the usage of words. अगर आप किसी भी शब्द का usage जानते हैं तो English आपकी. ठीक है, so talking about words, and under the words fall the parts of speeches. So how many parts of speeches are there? There are 8 parts of speeches. ठीक, okay, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, okay, then preposition, conjunction, and last but not least interjections. So these are the 8 parts of speeches, and there are only 8 parts of speeches. But let me tell you one interesting fact: in the coming years, article will also be fall under the category of parts of speeches, but article right now is not the part of speech. Okay, so these are the 8 part of speeches. Okay, नाउन क्या करता है, क्विकली मैं आपको बताता हूं. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन जो है नेमिंग वर्ड है. नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहे हैं, इनका एक्शन क्या है, कोई भी चीज हो रही है, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, फैन इज रनिंग, वीडियो इज रनिंग. ओके, सो दीज आर द एक्शंस. एडजेक्टिव, ब्लैक, रेड, white, ठीक है, beautiful, handsome, these are the words which describe adjective. Adverb is the verb which describe how something is. I am writing beautifully or I am writing drastically. तो ये सब क्या है, ये adverb है. Preposition tells us about the
relation of a noun with another verb or another adjective, and prepositions are the word in, at, into. Conjunctions combine two clauses, two words, and two sentences. Intersection are there for sudden reactions. My friend, let us try to implement these things. So the second sentence is, this just goes to show that there is no end to the evil men can do. What a beautiful sentence. So this is a demonstrative pronoun here. Okay, this जो है वो क्या है? This is a demonstrative pronoun here. ठीक है, this क्या है यहाँ पे? एक demonstrative pronoun है. ठीक, this को हम क्या बोलेंगे? Pronoun. And goes to show that there is no end to the evil men can do. Okay, and goes is a verb. Goes क्या है? Verb है. And before moving to that, ऊपर जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बता रखा है. यही बताया है ना कि वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं कहूंगा एडवर्ब. सो जस्ट यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट sentence reads, the skeptic successfully brought out the drama implicit in the occasion. So implicit word has been, underlined. So what is the part of speech of this word? So if we carefully observe the sentence, then it tells that implicit is modifying the noun. ठीक, ड्रामा जो है, ड्रामा is a noun basically, and this word implicit is describing the drama, and anything which describe noun is called adjective. तो noun को जो modify करेगा, noun को जो describe करेगा, उसे मैं क्या कहूंगा? adjective. तो implicit जो है वो यहाँ पे क्या है? adjective है my friend. ओके, आगे बढ़े. सो आगे जब हम चलेंगे, अपस्टेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? यू नीड टू गो अपस्टेयर्स. गो को मॉडिफाई कर रहा है कौन? अपस्टेयर्स. ओके, सो अपस्टेयर्स जो है अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे मैं क्या कहता हूं? उसे मैं कहता हूं एडवर्ब. एडवर्ब को फाउंड आउट करना बड़ा ही आसान है. ठीक है, सो हियर देयर एवरीवेयर, कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी टाइम, कोई भी मैनर, अगर कोई वर्ड बता रहा है और वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, देन ऑल द थ्री आर एडवर्ब्स हियर. ओके, सो लेट अस क्विकली मूव अहेड. सो द नेक्स्ट सेंटेंस रीड्स that the press blew up their constructive criticism into a full-scale assault on his character. So अब इसका ब्लू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये तो सबको मालूम होगा. ठीक है, द इज एन आर्टिकल, प्रेस इज अ नाउन, एंड ब्लू, द इज एन आर्टिकल बेसिकली, प्रेस इज अ नाउन, एंड ब्लू इज व्हाट? You have understood that, my friend, a sentence is made in this type: subject plus verb plus object, or if I bifurcate it, then subject plus helping verb plus verb plus object. This is the way we form a sentence. This is called syntax. So this is the noun, because subject can be either noun or pronoun. I will tell you about the subject and object in a different video, but here this is subject, and after subject a verb appears. So blue is the verb here. Okay, so next, you can have jam and bread, or you can have a pastry. In the starting video where I told you that there are 8 part of speeches, जहां पे मैंने आपको 8 part of speeches बताए हैं, वहां पे मैंने आपको ये बताया कि वो वर्ड जो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को और दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन. ओके, सो यहाँ पे एंड जो है वो क्या कर रहा है? जैम एंड ब्रेड को जोड़ रहा है, और जो है ब्रेड और यू को जोड़ रहा है. तो ये दोनों के दोनों कंजंक्शन नहीं हुए. सो दीज आर दी कंजंक्शंस. ओके, सो अगले शब्द पे चले. अगला शब्द मेरा क्या कहता है? अगला शब्द मेरा कहता है, यू शुड सीक ओनली दैट विच इज योर्स एंड नॉट थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स. सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोनाउंस हियर.
कैन यू, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे प्रोनाउंस क्या क्या है. प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. सो यू is a pronoun here. Then moving on further, that is pronoun here. Then yours is pronoun here. That is demonstrative pronoun. Yours is possessive pronoun. Possessive pronoun. Okay. And not things belonging to others. और कोई pronoun है क्या इसमें? दिख रहा है क्या आपको? यस, अदर्स माय फ्रेंड. अदर्स भी तो नाउन को ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है ना. तो अदर्स जो है वो क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है मेरा. ठीक है. सो अदर्स इनडेफिनेट प्रोनाउन है. तो कितने प्रोनाउन थे एक सेंटेंस में? 1 2 3 4. और मैं विच को तो भूल ही गया. विच इज ऑल्सो प्रोनाउन. इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक. तो एक ही सेंटेंस में कितने सारे प्रोनाउन हो गए. नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन प्रोनाउन है कौन क्या नहीं. अगर मैं यहां से बोलूं आपको शुड क्या है, तो शुड क्या है? माय फ्रेंड शुड इज अ मॉडल वर्ब. सीक क्या है? मेन वर्ब. ओनली क्या है? एडवर्ब. ठीक है. एंड क्या है? कंजंक्शन. नॉट क्या है? एडवर्ब. थिंग्स क्या है? नाउन. बिलोंगिंग टू अदर्स. बिलोंगिंग टू एक क्या है? बिलोंगिंग टू एक फ्रेज है. ठीक है. नेक्स्ट पे चलें. नेक्स्ट सेंटेंस को एनालाइज करें. रनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. सो एक लास्ट सेंटेंस बचा हुआ, इसमें पूरा हम लोग क्या करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं. रनिंग बेसिकली लग रहा होगा वर्ब, बट इट्स अ नाउन. इट्स अ जेरेंट फॉर्म ऑफ अ नाउन. रनिंग इज क्या है यहाँ पे? स्टेटिव वर्ब. ठीक है. द क्या है? आर्टिकल. बेस्ट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव. फॉर्म बेसिकली मैं इसको नाउन का एक मान सकता हूं. बेस्ट फॉर्म ऑफ, इसको एक नाउन फ्रेज बोल सकता हूं मैं. एक्सरसाइज क्या है मेरा? नाउन. बट क्या है मेरा? ये दो. रनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. वन मस्ट बी रेगुलर टू गेट द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ रनिंग. बट जो है ऐसा नहीं कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है. अगर दोनों को जोड़ रहा है तो क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ. ठीक है. वन प्रोनाउन. मस्ट मॉडल वर्ब. मस्ट इज अ मॉडल वर्ब. बी helping verb. Regular is an adverb. To get is an phrase. Best फिर से क्या है? Adjective. Out क्या है? Adverb. Off तो आपको पता ही होगा क्या? Preposition. And running is also a noun. So that's how we learn grammar. That's how we break the sentences. ठीक है. आप एक एक शब्द को तोड़ सकते हो आप अगर ग्रामर अच्छे से पढ़ोगे तो. So learn from the expert. Keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.